Yazılı diye yarıştı. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very warm good afternoon to everyone present here. On behalf of the Kargil Badminton Association, I, Said Najmul Hassan Musawi, feel truly honored to welcome you all to the closing ceremony. The first Kargil Badminton Championship 2025 over the past 3 years from the 18th to 20th of August. We have witnessed thrilling matches under 17, under 19, above 19, male-female matches, outstanding sportsmanship and the truly spirit of the competition right here in Baru Kargil. Today marks not just the conclusion of a tournament but the beginning of new sporting journey of Kargil. To begin the auspicious occasion, it is my privilege to welcome the chief guest of the event, Shri Rakesh Kumar, IAS, Deputy Commissioner and CEO Kargil. Sir, we are deeply honored to have your gracious presence with us today. We are also fortunate to be joined distinguished dignitary, Shri Abdul Hadi, Honorable Councillor, LHDC Kargil, our guest of honor. For more, we extend a warm welcome to our special guest, Shri Abid Ali, District Youth Service and Sports Officer. I think he is not here. Now, I request Zakir Hussain, General Secretary, Kargil Badminton Association, to honor the pride for our national anthem. Please stand up. State awardee and International Taekwondo plaque. Shri Mohammad Sadiq, Chief Executive Engineer and R&B. Richten Yadul, State awardee and International Para Taekwondo plaque. Mr. Manzoor Ahmad, Senior Badminton player. And Mr. Mehraj Shah, Senior Player Badminton, and Mr. Inayat Ali, General Secretary, Ladakh Taekwondo Association, and Professor Mohsen Ali. So I request Sajjad, please come here and present your welcome speech. The most gracious, most merciful, most beneficent. Esteemed
Chief guest, DC Kargil, Shri Rakesh Kumar sir. Special guest of honor, Mr. Abdul Hadi sir. Other dignitaries, senior players, and all my dear players, I wish all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good evening to everyone. I, Sajjad Hussain, on behalf of Kargil Badminton Association, here in front of you to welcome you all to witness first Kargil Badminton Championship 2025. Today, it's the last and the final day of the Badminton Championship, and it's the closing ceremony. So, I welcomes you all in the closing ceremony of this Badminton Championship. It gives me a great pleasure to welcome you all, especially our Chief Guest, Deputy Commissioner of Kargil, Shri Rakesh Kumar IAS sir. Sir, we are highly thankful to you for your precious time. Cieminie zarywa. Yeah.
ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का मैं इस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज फिर से एक बार यहाँ पे बुला के मुझे आप लोगों के साथ दो शब्द कहने का मौका दिया, थैंक यू। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था इस फर्स्ट कारगिल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज कर रहा था कारगिल बैडमिंटन एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कारगिल के कोलैबोरेशन में जितने भी खिलाड़ियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, मैं उन सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहे आप विनर अप रहे, चाहे रनर अप रहे, वो बात नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ये सबसे बड़ी बात होता है। मैं दिल से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जो यहाँ पे एक रोमांचक मैच देखने को मिला, बहुत मज़ा आया कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स के माबेन जहाँ पे हमारा गुलाम मेहदी और हमारे डीएसपी आसिफ साहब ये अनवर रजा अली के माबेन यहाँ पे खेल रहा था, बहुत अच्छा एक मैच देखने को मिला। क्योंकि सिर्फ देखना होता है, कभी मैंने बैडमिंटन खेला नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन रखता हूँ, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे आर्चर का हो, चाहे आइस हॉकी का हो, तो मज़ा आता है देखने में। तो आज फिर से आप लोगों ने एक बार यहाँ पे दावत दी, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँ हमारे बच्चों से कि आप जिस तरह आप ये स्पोर्ट्स फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी तरह हर लम्हे में, हर फील्ड में आप अव्वल लाने की कोशिश करना है। ज़रूरी आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिलवाना और प्लेटफॉर्म मिलना है, क्योंकि हमारे अंदर जो दो खामी जो छुपा होता है, वो एक हेजिटेशन होता है, दूसरा हमारी शेयरनेस होता है। जब तक हम अपनी ये दो खामी जो है बाहर नहीं निकालते, हम आगे नहीं जाते। आप पूरे करके पता है कि आप लोगों में एक ऐसी टैलेंट जो छुपा है, आप इसको थोड़ा तराशने की जरूरत है। माशाल्लाह हमारे यहाँ पे
जो कारगिल बैडमिंटन एसोसिएशन ने यहाँ इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट किए, यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का हमेशा हर ड्रीम में इस वक्त आगे जाना है। तो इसी तरह जिस तरह आप आउटडोर गेम्स हो या इंडोर गेम्स हो, इसमें अव्वल लाके हमेशा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना, ये नहीं देखना है कि आप तो क्या करेगा, क्योंकि जिंदगी में अगर आपको कुछ सीखना है तो हार के सीखना है। जब तक आप जिंदगी में हारोगे आप आगे नहीं बढ़ना, बहुत जरूरी है। उनकी पढ़ाई है, हमारे स्कूल ये क्या कहते हैं, स्कूल लेवल पे हमारे कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन होता है या हमारा डिबेट कंपटीशन होता है, हमारा ड्राइंग कंपटीशन होता है। ऐसे खेलों में भी, ऐसे कंपटीशन में भी आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। जब तक आप बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लोगे आप आगे नहीं जा पाओगे। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों से कि हमारा Memorable closing ceremony. Over the past 3 days, we witnessed a total number of 11 matches being played and 66 thrilling matches in the male category and 45 highly competitive matches in the female category. In all, the championship brought together 89 talented participants, 59 young men, 30 young women, each showcasing their skill, determination and true sportsmanship on the court. शहनाज परवीन जो हमारे स्टेट अवार्डी हैं, रिंचन जो हमारे स्टेट अवार्डी हैं, डॉक्टर नियाज साहब, मिस्टर महराज साहब, मिस्टर नायद साहब, हमारे डीएसपी ट्रैफिक साहब, जितने भी यहाँ पे बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, वो कारगिल बैडमिंटन एसोसिएशन की पूरी टीम, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे खुद को आके यहाँ बहुत अच्छा लगा और स्पेशली कारगिल बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ने बहुत एफर्ट किया। इसी मंथ के आई थिंक 10th को मेरे से मिले थे कि हमें टूर्नामेंट कराना है, अभी तक बैडमिंटन का कोई टूर्नामेंट नहीं होता। मैं खुद देख के मुझे भी अच्छा लगा, बट इस चीज़ को भी हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमारे पास इंफ्रा की, एटलीस्ट इंडोर इंफ्रा की अभी थोड़ी शॉर्टेज है। धीरे धीरे हमारे इंडोर इंफ्रा बन रहे हैं, ऑल्दो उनको बनने में थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ वर्किंग सीजन कम होता है तो उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा मार्केट में एक इंडोर स्टेडियम आ रहा है, होपफुली कुछ टाइम बाद में हम उसका वर्क भी एक्सपेडाइट करवा रहे हैं। कुछ टाइम में वहाँ पे इंडोर स्टेडियम की अच्छी फैसिलिटी आप लोगों के लिए, एक दो जगह और भी इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं, आइस हॉकी रिंग बन रहे हैं, बट वही है कि सारे के सारे मतलब कुछ बन गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इन प्रोसेस हैं। सो होपफुली आने वाले टाइम में हमारे जो कारगिल में जो इंफ्रा की कमी है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, वो आप लोगों को स्पोर्ट्समैन को नहीं फेस करनी पड़ेगी। एंड तो सबसे पहले मैं बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए यहाँ जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अभी इन्होंने बताया टोटल अराउंड 89 पार्टिसिपेंट्स है, तो हर एक पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ये संख्या बढ़ के 2-4 गुनी हो जाए। और बैडमिंटन एसोसिएशन प्लस स्पोर्ट्स वालों से मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप फ्रीक्वेंटली टूर्नामेंट करें। अभी हादी साहब से मेरी बात हो रही थी तब वो बोले थे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम क्यों ना टूर्नामेंट किया जाए, डेफिनेटली किए जाएंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप टाइप का कोई टूर्नामेंट यहाँ पे हम करें जिसमें सारे स्पोर्ट्स इंक्लूड करके, इंक्लूसिव हो, जिसमें सारे स्पोर्ट्स हो और के साथ हम मिलकर या तो इस साल करें, अगर इस साल नहीं फिजिबिलिटी बन पाएगी तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट साल के लिए प्रपोजल डाल के डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाएंगे। फर्दर जहाँ पे बैडमिंटन एसोसिएशन ने मुझे बहुत सारी डिमांड्स दी थी, उनमें सबसे मेजर डिमांड जो मुझे पहले ही आसिफ साहब ने बता दिया था कि जो बैडमिंटन कोर्ट अभी जो एग्जिस्टिंग ये कोर्ट है, इसमें भी नीचे जो सरफेस है बहुत स्लिपरी है, तो आगे आने वाले अब जैसे टूर्नामेंट आपका खत्म होता है उसके बाद हम इस पर रिपेयर का काम शुरू कर देंगे। कुछ टाइम में इसके अलावा जितने भी इंडोर स्टेडियम हमारे बन रहे हैं, हम ट्राई करेंगे कि अधिकतर इसी साल काम कंप्लीट हो जाए। जो नहीं पॉसिबल होगा वो इंश्योर करेंगे कि बाय नेक्स्ट ईयर काम कंप्लीट हो, ताकि हमारे जितने भी करगिल के खिलाड़ी हैं उनको कोई कमी ना महसूस हो। और
स्पेशली मैं जो शहनाज मैडम और रिंचन, इन दोनों का आपको बहुत मैं आभारी हूँ, इस चीज़ के लिए आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और स्पेशली मोटिवेट किया यूथ्स को, और बहुत ज़रूरी होता है। जितनी हार्डशिप में स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ते हैं, जितनी डिफिकल्ट परिस्थितियों को देख के आगे बढ़ते हैं और वो बाद में मोटिवेट करते हैं, बाकी लोगों को मोटिवेट करते हैं, देख तारीफ़ काबिल है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ओबियसली यूटी गवर्नमेंट अपना एफर्ट्स लगा रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, चाहे स्पोर्ट्समैन को हेल्प करने की हो, विद इन ड्यू टाइम्स वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी, बट मैं जितना अपनी तरफ से हो सकेगा वो पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। Facility and prize distribution ceremony. Today we honored not just winner but every player who gave their best and made this championship a grand success. So I may request Abbas sir, you please come here and distribute prizes. जंग में गिरते हैं शेख सवार मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बाल चले। मैं आज की जितने भी पार्टिसिपेशन है सबसे पहले उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और एक बेहतरीन यहाँ पे गेम दिखाने में सफल हुए। तो मैं इसके बाद जल्द ही आज के इनामात का यहाँ पे तकसीमात शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे नमो लाडोल को कि वो यहाँ पे आए और अंडर 16 की यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे आए। अंडर 16 गर्ल्स सिंगल, उसके बाद हमें इनाम जो है लाडोल ने के हासिल। जहीर अब्बास विनर नदीम सरवर को इनामात तस्लीम करेंगे। जो अपना इनाम लेंगे हमारे नेशनल प्लेयर से ताइक्वांडो के, इंटरनेशनल प्लेयर ताइक्वांडो का। शुक्रिया शहनाज ने। उसके बाद में दावत देना चाहता फरीदा बतूल जो कि अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स के रनर अप है, अंडर 19 गर्ल्स के सिंगल के। थैंक यू आसिफ सर, थैंक यू सो मच। डबल्स के रनर अप फरीदा एंड फरजाना। उसके बाद उसके बाद मैं डॉक्टर नियाज को यहाँ पे दावा देना चाहूँगा। सर आप यहाँ पे आके बच्चों में इनामत हासिल करें। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा विनर अप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डॉक्टर सर, डॉक्टर नियाज सर हासिल करें जैसा रनर अप। उसके बाद में अंडर एवो, उसके बाद में बुलाना चाहूँगा एवो 19 बॉयज मेंस सिंगल। उसके बाद एवो 19 बॉयज उसके बाद मेहराज शाह सीनियर प्लेयर। उसके बाद मंजूर अहमद सीनियर प्लेयर एंड उसके बाद इनायत अली मीडिया प्लेयर, मीडिया सर इनायत अली मीडिया। उसके बाद लगातार यहाँ पे और आज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले सईद माशा, उसके बाद मोहम्मद साबिक, फिर इसके बाद मोहम्मद हसनैन। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चीफ गेस्ट को आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर को ऑनर को
इंटरनेशनल खेल के आई है रिसेंटली, आप दोनों रिंजन निडोलो, आप दोनों ने इन ताइक्वांडो में, और आज यहाँ पे पहली बार एक डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया, कैसा महसूस होता है? और फर्दर यंग लड़कियों को, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के यंग बच्चियों को आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो बैडमिंटन एसोसिएशन का हम थैंकफुल है जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और अप्रिशिएट किया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारे प्लेयर्स थे बैडमिंटन के जो खेल रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी इस फील्ड को इसी फील्ड में प्रोफेशनली खेलेंगे। तो मेरा यही मैसेज है, जितना हो सके आप लोग जो भी गेम खेलते हो उसको प्रोफेशनली चुनना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन खेला फिर हार गया फिर छोड़ दिया। ख़ुद को मोटिवेटेड रखना है और आने वाले कॉम्पिटिशन्स में लद्दाख को प्राउड फील कराना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कारगिल बैडमिंटन एसोसिएशन ने जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया सर, एक प्रोफेशनल एक तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सपोर्ट रहेगा सर फर्दर ऐसे स्पोर्ट, और बीइंग ए यंग डीसी ऑफ कारगिल सर, आपका क्या सपोर्ट रहेगा सर ऐसे स्पोर्ट्स को फर्दर अपलिफ्ट करने के लिए? सबसे पहले तो बैडमिंटन एसोसिएशन एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई है। उन्होंने एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट यहाँ बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, फर्स्ट एवर बैडमिंटन टूर्नामेंट, और हमारा इन फ्यूचर अभी भी जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा इसमें हमारा फुल सपोर्ट रहा है बैडमिंटन एसोसिएशन को, एज वेल एज यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरह एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्दर इन फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे टूर्नामेंट रेगुलर लेवल पर कराता रहेगा, और हम इस चीज़ की भी प्रोसेस में कि सारे स्पोर्ट्स को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हर एक स्पोर्ट्स में होना चाहिए, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली इस साल या नेक्स्ट ईयर हम डेफिनेटली करवा देंगे। ये अभी रिसेंटली हमारा एलजी पोलो कप भी आ रहा है जो कि 24 से स्टार्ट हो रहा है, 28 तक चलेगा द्रास में। सर यहाँ पे मेन कारगिल में सर इंडोर स्टेडियम का बहुत शॉर्टेज है, जैसे आप लोग यहाँ पे हमें कॉन्फ्रेंस डाल के ऑफिसर्स इंडोर स्टेडियम में आज ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इंडोर स्टेडियम पे यहाँ पे काम चल रहा है पिछले 2 साल से, बहुत स्लो पेस पे वो काम चल रहा है। उसका ऑलरेडी रिव्यू ले लिया है, कुछ उसको काम को भी एक्सपेडाइट कराया गया, विद इन आने वाले कुछ समय वो कंप्लीट भी हो जाएगा है। इसके अलावा भी इंडोर स्टेडियम प्लस आइस हॉकी रिंग और ये हमारे ग्राउंड्स बहुत मल्टीपल जगह बन रहे हैं। इसके यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हमने रिसेंटली एक रिव्यू रखा है, तो उसमें इन चीज़ों को एक्सपेडाइट भी किया जाएगा।